Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in this video, we will discuss credit control measures. Now, what is the effect of credit and why credit is to be controlled? Now, credit creates money. It adds to money supply, and that's why RBI has to keep a tap, a control on credit supply as they keep control on money supply. Now let's understand. There is a person, he wants to buy a goods worth 10 lakh rupees, but he is having 3 lakh rupees. Now 7 lakh rupees is provided by the bank on loan. So he is able to buy goods worth 10 lakh rupees. That means the bank loan enhances the purchasing power of customer or consumer. And once this purchasing power is increased, it will lead to consumption. That means there will be growth in economy. More people will be able to sell their goods due to this additional money provided by the bank. But on the other hand, if the money supply increases too much and the goods produced are less, it will lead to inflation. And that's why it is the role of the RBI to keep a balance between inflation and growth. Sometimes they will take steps to increase the growth. Sometimes they will take the steps to control the inflation, which may control the growth also, because they have to control the money supply. So regulating the money supply and the steps taken for that is called credit control measures. And RBI adopt two strategies for that. One is called qualitative credit control measures and other is called qualitative credit control measures. We have discussed these methods separately in detail in different video. But what are the quantitative control measures? We can call them interest rate policy or ratios. That means by making the interest rate higher and lower, credit growth can be checked. Similarly, by altering the ratios like CRR and SLR, the quantity available at the banking level can be regulated. How this is regulated, it is covered in my various videos. Watch those videos. So credit control measures means changing the interest for repo, reverse repo and other rates, as well as making any changes in CRR and SLR. So for banking knowledge, watch 10 to 15 videos from this channel. Playlist is available in description. It will enhance your knowledge like anything. Then for current affair, I have given you a very good source. Click the link. You will land up on an app. Download the app. Take the current year plan. Apply coupon code AA03. You will get 10% discount and access to a lot of current affairs. As far as health is concerned, this channel, I have given you a link of playlist. Watch these videos, maintain your good health and stay healthy. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स. अब जो क्रेडिट है, जिसको हम लोन्स कहते हैं, उसको क्यों हमें कंट्रोल करने की जरूरत है? जो बैंक का लोन होता है वो मनी की तरह काम करता है और वो मनी सप्लाई को बढ़ाता है. आसानी से समझने के लिए आप ये समझिए कि एक व्यक्ति को कोई 10 लाख रुपए की चीज़ खरीदनी है. उसके पास है 3 लाख रुपए. 7 लाख रुपए का लोन दिया बैंक ने. उसने 10 लाख रुपए की चीज़ खरीद ली. तो अब परचेजिंग पावर क्या हो गई इस व्यक्ति की? 3 लाख से बढ़ के कितनी हो गई? 10 लाख. कितनी हो गई? 10 लाख. तो ये जो 3 लाख थे, ये बढ़ के उसके 10 लाख हो गए, क्योंकि 7 लाख रुपए का लोन बैंक ने दे दिया.
तो इससे क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गई। और जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो एक तरफ वो सपोर्ट करती है उस प्रोड्यूसर को जिसने गुड्स बनाई है उसकी खपत होने में, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन बढ़ती है। क्योंकि अगर उसके पास 7 लाख ना होते बैंक से तो वो 3 लाख की वस्तुएं ही खरीद सकता था, और वही व्यक्ति 10 लाख की वस्तुएं खरीद सकता है। तो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बैंक का बहुत भारी रोल है। जहां प्रोडक्शन में काम है वहां कंजम्पशन में भी बैंक का बहुत भारी रोल है। पर यदि ये मनी सप्लाई बढ़ती जाएगी और गुड्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी तो बहुत ज़्यादा पैसा कम गुड्स को जब चेस करती है तो क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो आरबीआई का रोल है कि इन दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना, कि ग्रोथ भी बढ़ती रहे और इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल रहे। क्योंकि सब लोग तो उधार नहीं ले रहे, कुछ लोग तो जो कमा रहे हैं उसी में से गुजारा कर रहे हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है। तो आरबीआई क्या करता है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है जिसके जरिए जो क्रेडिट है वो रेगुलेट रहे, और इनको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। और ये 2 तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। इन दोनों चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लोर किया है हमने डिफरेंट वीडियोस के अंदर। तो जब आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है क्रेडिट की क्वांटिटी को रेगुलेट करना, कितना उधार अवेलेबल हो एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के थ्रू ये किया जाता है कि रेपो का रेट बढ़ा दिया, घटा दिया। अगर उधार सस्ता हो जाएगा, ज़्यादा डिमांड होगी, उधार महंगा होगा तो कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। इसी तरह रेशियोज को बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर, जैसे CRR है, SLR है, इनको बढ़ाना, इनको घटाना, इसके थ्रू भी क्रेडिट को रेगुलेट किया जाता है। तो ये हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस की हैं सारी चीज़ें, उनको वहाँ से आप देखेंगे। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको दिया है। 10 से 15 वीडियोस रोज आप देखेंगे, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए भी मैंने आपको एक बेहतरीन सोर्स दिया, इस सोर्स से आप करंट अफेयर को पढ़िए। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको एक लिंक दिया, लिंक को आप क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से करंट ईयर का प्लान ले लेंगे, कूपन कोड AA03 इस्तेमाल करेंगे, 10% आपको ऑफ मिलेगा। उसके अंदर करंट अफेयर का मटेरियल आपको मिल जाएगा, उसको लगातार पढ़िए। अच्छी सेहत कैसे मेंटेन करें, इसकी भी एक प्लेलिस्ट मैंने वीडियोस की दी है। इन वीडियोस को देखिए और सेहतमंद रहिए। गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस।